Gee, the class has just started. Matlab, you haven't missed anything. It's just started basically. So, last time we did few things here and there in terms of statistics and what you can do, what you should expect if you're outsourcing, and regarding brainstorming, regarding some list of Fiverr writers you can go reach out to, say a template for the for your book. If you want to start writing, you should directly start using this link over here so that it's not completely empty. And I promise you guys that this session is going to be about KD Spy and Publisher Rocket, so that we have everything covered in regards to the keyword research and uh, so niche research, and then you guys can proceed with your topic selection. I did mention that it's best if you guys start off with 3 books or have 3 books in mind and then narrow it down to, मतलब start तो एक से ही लोगे ना, पहले एक complete कर ली फिर दूसरी फिर तीसरी. You have it in your to complete that one specific book, you have it in your head. The good thing is since I have my hands on KDP, KD Spy and Publisher Rocket, I'll just walk you through it so that you guys know how this works. I'm sure that a lot of you guys already know how this works because उनके पास है. This is for those जिनको नहीं पता बिल्कुल भी या जिनके पास नहीं है. So yeah. So let's start with KD Spy. उसके बाद मैंने एक बेस्ट प्रैक्टिस भी लिखी हुई है. So I was thinking कि पहले मैं तुम लोग को एक आइडिया दे दूं कि how this is working. By the way, just for the record, मेरे पास KD Spy जो है वो बग हुआ है थोड़ा. मैंने रीस्टार्ट करा अपने लैपटॉप को couple of times, but जैसे ये चलता है completely वैसे नहीं चल रहा, लेकिन एक मेन एस्पेक्ट जिसका है वो मैं तुम लोग को दिखा दूंगा फिर भी. ठीक है, वो तुम लोग को पता भी चल जाएगा मैं किस बग की बात कर रहा हूँ. So see, regarding the book titles, I'll tell you something. मैं तुम लोग को एक guideline दे देता हूँ कि what you should be looking into, because then you don't have to go through my approval for book titles then. ठीक है, because I'm not the title guy, I'm not the content writer, because I get it done from someone else. Product selection is an entirely different thing. This is an entirely different thing. You have to get an enticing title done through your research, which I've provided you, or you have to get it done through an expert writer, get him on board. Usse pucho ke what do you think, get 3 to 4 titles on board and get things done. This is the correct way. So yeah, this is totally different from product selection or niche selection, because मैं तुम लोग को validation points बता दूंगा कि look at these areas 1 2 3 4 5 6. इन areas को judge करने के बाद तुम लोग की एक silver lining बन जाएंगी, and then stick to that silver lining, and then तुम लोग अपनी जो है ना book को launch करने की तरफ जाओ या लिखना start करवा दो या जो भी. ठीक है, लेकिन वो बहुत क्लियर पॉइंट्स होंगे, बहुत ज्यादा क्लियर पॉइंट्स होंगे जिसके बाद तुम लोग को समझ आ जाएगा. ठीक है, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग केडीपी एंड पब्लिशर रॉकेट. हाँ एग्जैक्टली. तो तुम लोग को वो एक चीज पता चल जाएगी कि मैं किस तरह अपनी जो है ना टॉपिक सेलेक्ट कर रहा हूँ, बहुत इजीली समझ आ जाएगा. ठीक है, बहुत इजीली. सो से once you have bought KD Spy, which is for I think $47, and if I'm not wrong, ठीक है, और खरीदने के बाद you just have to go and type in KD Spy Chrome extension. That's what you need to type in, and then you have to download the Chrome extension. That's it. That's all you need. ठीक है, once the Chrome extension is here, अब for example, I'm going to give you an example. Amazon bestsellers Kindle के section में आओ, और इस पे आने के बाद let's suppose तुम बोलते हो Kindle non fiction के section में आए, यहाँ पे non fiction सारी books आ गई. अब तुम लोग ये चाह रहे हो कि यार
मुझे सिर्फ एक आइडिया पता चल जाए, जो मैंने तुम लोग को एक शीट बनाने के लिए बोला था, इफ यू गो बैक टू दैट वन पार्ट जहाँ पे मैंने बोला था कि यार एक शीट बनाओ, इस तरह ये सारी चीजें अपनी रिसर्च के लिए कर लो. आई डिड नॉट हैड केडी स्पाई बैक देन, बट केडी स्पाई बेसिकली व्हाट इट डज इज कि तुम्हारी आधे से ज्यादा रिसर्च तुम्हारे लिए करके दे देगा और तुम्हारी जिंदगी आसान कर देगा. हाउ? अब जैसे मैं अगर नॉन फिक्शन सिंगल्स में आया हूँ और तुम बोलते हो कि नॉन फिक्शन सिंगल्स के अंदर मुझे अपनी कोई कैटेगरी के ऊपर अपना बुक पब्लिश करनी है, तो तुम किंडल स्पाई के ऊपर क्लिक करो, केडी स्पाई के ऊपर क्लिक करो, तो ये तुम्हें इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जितनी भी बुक्स हैं और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो सब तुम्हारे सामने ला के रख देगा. ठीक है. वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट. ये देखो पहली बुक ये रही. ठीक है. सेकंड है स्टेलिन द क्रेमलिन माउंटेनियर. सही है. स्टिल इन द क्रेमलिन माउंटेनियर, ये रहा. ठीक है. तो ये तुम्हें सारी डिटेल्स उस बुक से रिलेटेड लाके तुम्हारे सामने रख देगा, प्लस कितने पेजेस उस बुक ने लिखे हुए हैं, टोटल प्राइस अभी उस बुक की क्या चल रही है, एस्टिमेटेड मंथली सेल्स कितनी है, एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू कितना है, टोटल रिव्यूज बुक के कितने हैं, और सेल्स रैंक बीएसआर पार्ट क्या है अभी. ठीक है. तो और प्लस अगर तुम टॉप पे देखोगे और अगर तुम लोग और रिजल्ट्स पुल करना चाह रहे हो इसी सेक्शन में, जस्ट हैव टू क्लिक ऑन पुल रिजल्ट्स फ्रॉम 21 टू some 40 and then 41 to 60 and 61 to so on so forth. ये चलता रहेगा. ठीक है. 20 ये 1 to लेके 40 तक इसने सारे रिजल्ट्स लाके दे दिए. मैं चाहता हूँ और रिजल्ट्स भी पुल कर लो. ठीक है. एवरेज सेल्स रैंक क्या है? जरा एक मिनट मुझे जरा बैक पे आने दो. अब the problem is कि ये चीज let's suppose if I talk about fitness. यहां में बग हो रहा है जबकि ये ऐसा होता नहीं है. एंड आई थिंक जिनके पास केडी स्पाई है, अगर वो यही चीज करें कि ऊपर किंडल स्टोर के ऊपर क्लिक करके फिटनेस बुक्स लिखें या फिटनेस लिखें और जो बुक्स सामने आएंगी तो उनके पास फौरन सामने जो है ना वो आ जाएगा. मैं जब खुद से सर्च कर रहा हूं, विच इज नॉट द केस, केडी स्पाई आपको आपके कस्टमाइज सर्च टर्म के ऊपर भी पूरा डाटा लाके सामने दे देता है, एंड विच इज नॉट वर्किंग ओवर हियर. So I think I might need to reinstall it or may need to try it on another computer or somewhere. So yeah, but this is not the case. Yeah, this works perfectly fine. Just give me a moment. मैं जरा कुछ चीजें देख लूँ और बेस्ट सेलर्स में वापस आ गया हूँ मैं. ठीक है. चले इधर 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 भी चल जाएगा. आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस. लेट्स सपोज आप ये बोलते हो कि आपने हेल्थ एंड फिटनेस डाइटिंग या फिर मेडिकल ई बुक्स चले करते हैं. मेडिकल ई बुक्स में वी हैव टॉप 100 पेड एंड टॉप 100 फ्री. द ग्रेट इन्फ्लुएंजा, ऑब्वियसली ये ट्रेंड में चल रहा होगा. लेट्स हाँ ठीक है, अब ये चल रहा है द ग्रेट इन्फ्लुएंजा. अब तुम लोग देख सकते हो कि तुम लोग अपनी स्पेसिफिक बेस्ट सेलर कैटेगरी में आ गए हो और उस कैटेगरी में आके तुम लोग आराम से इसको यूज करोगे. अगर ये बग तुम लोग के पास चल रहा है तो फिर भी तुम लोग एक काम ये कर सकते हो कि तुम लोग उस खास कैटेगरी में चले जाओ जहां पे तुम अपनी बुक को देखते हो और फिर जाके तुम लोग रिसर्च कर लो. आई मीन इसके ऊपर क्लिक कर लो तो ये तुम लोग को उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स दे देगा. ठीक है. अब ये 1 to 20 है. आई वांट टू पुल रिजल्ट्स फ्रॉम 1 to 40, तो मुझे पूरे 1 to 40 रिजल्ट्स लाके दे दिए. अब अगर टॉप के सेक्शन में देखते हो तो रिजल्ट फ्रॉम 1 to 40, एवरेज सेल्स रैंक सारी बुक्स का मिला के is around 3,500. एवरेज मंथली रेवेन्यू is around $15,000. तो looking at these, you can pull this data, एक्सपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली. एंड मैं जैसे मैंने अभी एक्सपोर्ट करा है और मैं अभी इसको खोल रहा हूं.
मैं जरा अपना पूरा स्क्रीन शेयर कर दूं, रुकिएगा जरा 1 मिनट। न्यू शेयर स्क्रीन, और ये पूरा डाटा मैंने इसका पुल कर लिया अपने पास, ठीक है। तो यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम हियर, बिकॉज जो रिसर्च मैंने तुम लोग को करने के लिए बोली थी वो अपने आप तुम लोग को करी कराई मिल जाएगी थ्रू केडी स्पाई। एंड इसमें और एरियाज भी हैं, कीवर्ड के लिहाज से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि मैं ड्रॉप शिपिंग में कुछ लिखना चाह रहा हूं, तो देयर यू गो, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग में कीवर्ड्स जो चल रहे हैं और कॉम्पिटिटर्स कितने बैठे हुए हैं उस स्पेसिफिक एरिया, उस स्पेसिफिक कीवर्ड पर, तो वो सारे डिटेल्स भी डाल दिए। अच्छा, व्हेन आई क्लिक ऑन एवरेज मंथली रेवेन्यू, तो यहाँ पे भी फिर से मुझे थोड़ा सा बग दिखा रही है, जबकि ये बग नहीं होता था। आई गेस प्रोबेबली हो सकता है कि मुझे अपने कैशे कुकीज वगैरह क्लियर करना हो और कुछ चीजें हेयर करनी हो तो शायद सही हो जाए, लेकिन ये भी काम करता था, सही है। लेट्स सी के ये भी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैंने अभी एनालाइज रिजल्ट्स करा है ऑन अ पर्टिकुलर कीवर्ड एंड आई फील कि ये काम नहीं करेगा, अभी नहीं कर रहा, लेकिन ये करता है, इट वर्क्स। सी, it's not working right now but it works. तो 1 मिनट, ये फिर से बग हो गया, रुकिएगा। हाँ अब दिखा रहा है, ठीक है। तो इससे तुम लोग को पता चल जाएगा कि एवरेज रेटिंग क्या लेके बैठे हुए हैं लोग, एवरेज मंथली सेल्स कितनी हो रही है लोगों की, एवरेज प्राइस क्या चल रही है विद अ स्पेसिफिक बीएसआर रैंक। और अच्छा, आई डोंट नो इफ यू नो दिस फॉर अ फैक्ट और नॉट, बट लेट्स सपोज द ग्रेट इन्फ्लुएंसर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मैं इस कैटेगरी में जाता हूँ। इस कैटेगरी में जाने के बाद आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट इनकी जो बीएसआर रैंक है दैट वेरीज फ्रॉम कैटेगरी टू कैटेगरी। ऑडियो बुक्स में अगर मैं क्लिक करता हूं तो इसका रैंक राइट नाउ इज नंबर 142, ठीक है। दिस वुड चेंज फॉर हार्ड कवर, सी, एंड सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज, एंड दिस वे यू कैन गेट मोस्ट आउट ऑफ इट कि ये पर्टिकुलर बुक अभी किस कैटेगरी में ज्यादा अच्छी चल रही है। एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू क्रिएट ऑडियो बुक्स राइट नाउ, जस्ट वांट यू टू फोकस विद ई बुक्स, बट आई मैं फिर भी तुम लोग को बताना चाह रहा था कि दिस वेरीज, ठीक है। ओके, इसका तो मैं तुम लोग को बता दिया। एक दो चीजें मैं तुम लोग को और बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मैं समझता हूँ है, अगर तुम लोग लेट्स सपोज और हीलियम 10 लोड कर रहा है, आई नो यू डू योर पीएल रिसर्च using helium 10 and all, but it's best if you also use this for KDP, because इससे तुम लोग को एग्जैक्ट ट्रेंड पता चलेगा और ये पता चलेगा कि कब उसने अगर बुक में की प्राइस के अंदर चेंजेस आए। न्यू प्राइस थी 12.21 रखी इसने, और इसका जो सेल्स रैंक था, एक सेकंड रुके, या फॉर फ्यू डेज इसने अपने जो ना मतलब 12.21 रखी। खैर यू कैन इग्नोर दिस बिकॉज ये बहुत छोटा पीरियड था, और उसके बाद इसने 1.99 भी रखी है एट सम पॉइंट। तो इससे तुम लोग को अंदाजा हो जाएगा कि कुछ ऐसे, मैं इस पर्टिकुलर बुक की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ बुक्स क्या करती हैं कि वो अपनी प्राइसिंग चेंज कर करके भी चेक करती है कि भाई क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उनकी सेल्स के ऊपर। तो इसका फिर भी थोड़ा सा कह सकते हो कि एक तरह का थोड़ा स्टडी ट्रेंड है, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनका बहुत एबनॉर्मल ट्रेंड होता है। लेट्स हैव अ लुक। जैसे कि तुम लोग ये देख सकते हो, सेल्स रैंक इसका 6,000, 800, 900 पे था, एंड देन
एकदम से ड्रॉप करा है. सो इट कुड, मैं इस फिर देन अगेन ये बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं, लेकिन मैं किसी ऐसे या टू गुड टू बी ट्रू भी एकदम से ऐसी सिचुएशन है, लेकिन मैं जनरली एक बात कह रहा हूं, मैं कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जिसमें सेल्स रैंक आपका चल रहा होता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एकदम से गिर के 4 पे आ जाए, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स सपोज 18,000, लेट्स सपोज 21,000 पे चल रहा होगा और एकदम से गिर के जो है ना 7,000 पे आ जाएगा या 6,000 पे आ जाएगा. मतलब इसी तरह का ट्रेंड दिखा रहा होगा कि 18,000 पे एकदम से 7,000 पे आ गया. उसके कुछ और रीजंस भी होते हैं कि वो पेड एड्स शुरू कर देते हैं और एकदम से जो है ना बुक की सेल्फ सेल्स शुरू हो जाती हैं बहुत ज्यादा. तो ये भी कुछ रीजंस होते हैं, तो इनको जहन में रखना. एक शायद तुम लोग ने मोड यूज करा हो, सेरिब्रो मोड किसी ने यूज करा है फॉर इन हीलियम 10? आई डोंट नो. या एग्जैक्टली. चले, गुड टू नो. अच्छा, सो एग्जैक्टली, तो वही सेम फीचर आई वुड वांट यू गाइस टू यूज फॉर दिस केडी, अब केडीपी. अब मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ. आई नो दिस. हाँ, तो दिस itself is used largely in PL. ठीक है, I want you to use it for your KDP as well, because इससे तुम लोग को अपने बहुत सारे relevant keywords पता चलेंगे जिसके लिए ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है रैंक कर रहा है इन डिफरेंट कैटेगरीज एज वेल. ठीक है, सो तुम लोग को पता हो नहीं पता हो, लेकिन व्हेन यू आर लॉन्चिंग योर बुक यू गेट योर 7 keywords that you can use at back end, and you can get ताकि तुम लोग you can make most out of those specific keywords जो तुम लोग करते हो. तो उसमें तुम लोग डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं पर्सनल फाइनेंस फॉर वुमेन की बात करता हूँ या पर्सनल फाइनेंस की बात करता हूँ और मैं एक बुक लिख रहा हूँ, तो हो सकता है कि उस बुक का कोई ऐसा एस्पेक्ट बजटिंग के ऊपर भी बेस्ड हो, तो मैं बजटिंग के ऊपर भी उसको टैग कर दूंगा. ठीक है, एक रुकना जरा. So they might have changed it, but just have a look.